पीपल थिंक अच्छा उस सेलिब्रिटी ने कराया है हाँ, तो इसका मतलब क्रेडिट अच्छा होगा, या तभी कराया है, वरना क्यों करा था। करेक्ट। तो बट अभी क्या है, क्योंकि उस सेलिब्रिटी ने करा लिया है तो इसका मतलब Why do celebrity hair transplants fail? तो 6 महीने का शाहरुख बनना है तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं, पर जीवन भर अगर अनुपम खेर सर जैसा नहीं रहना है तो then there are very few options. So see, again, people think that hair transplant is something which is, I mean, obviously it is a surgery. It has so many things uh, around it which has to be planned. But हाँ, एक बहुत easy हो गया कि आराम से hair करा लेंगे. So most of the times this fails because people think that celebrities have access to all the information. They The have best money, treatments. best treatments. They have power. They have everything. But उनका अगर and that is taken as a credibility thing as well. People think अच्छा उस सेलिब्रिटी ने कराया है तो इसका मतलब क्रेडिट अच्छा होगा, या तभी कराया है, वरना क्यों करा था। करेक्ट। तो बट अभी क्या है, क्योंकि उस सेलिब्रिटी ने करा लिया है तो इसका मतलब अब लोग समझ रहे हैं कि वो अच्छा है और अब वो भी जा जाकर कराए जा रहे हैं। सो देयर इज a very good actor, Mr. Perfectionist of Bollywood. So he got a hair transplant done and his hairline is not that perfect and he knows it. उनका hairline उनको कवर करना पड़ता है बाल नीचे करके। Oh, okay. And I'm sure he makes movies after so much of research. 5 साल में एक movie आता है. So he must have done enough of research on his hair also, hair transplant surgeon also, the technique also. Yeah. But there is one single thing which can ruin the entire show for everyone, and probably his research also was short of this important point. So what he thought was the skill of the surgeon. जो उन्हें लगा कि भाई हाँ मैंने देखा इसका रिजल्ट सही दिख रहा है, वो अच्छा दिख रहा है, तो बट अगर उस रिजल्ट में 90% कंट्रीब्यूशन दवा का हो और सिर्फ 10% कंट्रीब्यूशन डॉक्टर के स्किल का हो तो ये रिजल्ट लॉन्ग लास्टिंग नहीं होगा। So I'm sure उन्होंने रिसर्च तो किया होगा कि मेडिसिन कैन हैव साइड इफेक्ट्स एंड ऑल, सो लेट अस नॉट टेक द मेडिसिन। बट अगर उनके सर्जन को सिर्फ दवा के साथ ही ट्रांसप्लांट कर रिजल्ट देना आता था ठीक, तो बिना दवा के तो उनके सर्जन के काम नहीं करते। बट सेलिब्रिटीज तो बहुत अच्छी लाइफस्टाइल लीड करते हैं, तो व्हाई डू दे फेस हेयर लॉस एंड that's what working out at the gym, people lose hair, excessive workouts. So what's the correlation? So working out in gym does not mean that it is a healthy lifestyle. Okay. So what you are eating, people take a lot of steroids. If you talk about gym, so there are you will see people working out in gym, they have excessive hair loss. Yeah. So number one reason, they take supplements, especially they take creatine and they take steroids, anabolic steroids, testosterone. Obviously this leads to excessive hair loss and it's not good for their health. But अभी हमें ये नहीं समझ में आता कि करंट जनरेशन को हो क्या गया है। They are willing to put anything and everything at stake just to look good. और हम यही पेशेंट्स को समझाते हैं जब वो ट्रांसप्लांट के लिए आते हैं कि भाई आप अपनी हेयरलाइन ऊंचा रखो थोड़ा, आप अपने रिसोर्सेज को संभल के खर्च करो। Take the example of Elon Musk. He is the Elon Musk. When he did his first transplant, he kept his hairline pretty high, and then he brought it down after waiting for good 6-7 years. So मैं अपने पेशेंट्स को बताता हूँ भाई एलॉन मस्क के पास तुमसे ज्यादा पैसा रहा उस समय, तुमसे ज्यादा अच्छा डोनर रहा, but see he planned it and he still has hair, maybe after 20 or plus years of his transplant. But yes, 20 years छोड़ो, लोग ऐसे सोचते हैं, this is a myth. लोगों को लगता है कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिजल्ट जो है वो लॉन्ग लास्ट 10 साल तो चल ही जाएगा, लाइफ टाइम। कोई बच्चों का खेल है 10 साल चल जाएगा, 10 साल छोड़ो 10 महीने नहीं चलता। आप देखो अभी एक बहुत फेमस क्रिकेटर ने ट्रांसप्लांट कराया और उनका रिजल्ट
तो 10 महीने से भी कम समय में खाली हो गया। Okay. और वो 3 महीने, अच्छा 3 महीने जबकि ट्रांसप्लांट के रिजल्ट्स आने शुरू भी नहीं होते, शेडिंग फेज में होते, 3 से 4 महीने में तो उनका भरा हुआ दिख रहा सबका। सो दिस वाज रिजल्ट ऑफ मेडिसिन ओनली। Okay. ओवर रिलायंस ऑन मेडिसिन कैन एक्चुअली नॉट ओनली ruin your health, but it will also ruin the chances of sustaining these hair for long period of time. अब वो क्रिकेटर बेचारे पाउडर छिड़क के घूमते हैं और कैप पहन के रखते हैं बहुत दफा जब सोशल आउटिंग्स में जाते हैं, और आप देखोगे इनमें से बहुत सारे सेलिब्रिटीज के रिजल्ट्स पता है सबसे अच्छे कहाँ लगते हैं? मूवीज में? नहीं, उन क्लिनिक्स के उन क्लिनिक्स के वेबसाइट्स पर अच्छे लगते हैं, उनके क्लिनिक्स के वीडियोस पे अच्छे लगते हैं,